آج جمعہ ہے اور اکتوبر کی 10 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ انڈیا کا کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، اورکزئی میں 30 شدت پسند ہلاک۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ فیض آباد سے امریکی سفارت خانے تک TLP کا اقصی مارچ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ناکام احتجاجی تحریکیں، عوامی منصوبے اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کا الزام۔ جانیے علی امین گنڈا پور کا 20 ماہ کا اقتدار کیسا رہا۔ خیبر پختونخوا کی سطح پر عمران خان کے اس فیصلے کے بعد کہ علی امین کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، اب یہاں پر ایک سیاسی کشمکش جاری ہے۔ لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ علی امین کا جو یہ 20 مہینوں کا دور تھا، یہ کتنا متنازع رہا یا کتنا یہ اسموتھلی چلا ہے۔ راول پنڈی چکن ٹکا انڈیا کا ایک متنازع مینیو کارڈ، جس پر پاکستان سمیت انڈیا میں بھی تنقید۔ مین کورس میں جو ڈشز رکھی گئی تھی ان میں شامل تھا راول پنڈی چکن ٹکا مسالہ، رفیقی رہرا مٹن، بھولاری پنیر میتھی ملائی، سکر شام سویرا کوفتہ، سرگودا دال مکھنی، زکوب آباد میوہ پلاؤ اور بہاول پور نان۔ اور یہ بھی جانیے کہ کسی کے مرنے کے غم کو کیسے برداشت کیا جائے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں، انہیں کبھی کہیں جانے نہ دیں۔ لیکن جب ہمارا کوئی پیارا مر جاتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ مشکل وقت میں امید کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کی کہانی بہت تاریک ہے، بہت ڈراونی ہے اور اس کا ہر باب تنازعات سے بھرا ہے، اس میں پانے سے زیادہ کھونے کا ذکر ہے اور غیر استحکام ہے، اس سب کے باوجود بھی آپ امید کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ بے قابو ڈمپر، لاپرواہ موٹر سائیکل سوار یا ٹوٹی سڑکیں، کراچی میں ٹریفک حادثات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا روڈ پہ چلنے والے جو بائکوں پہ جو سوار ہوتے کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا بھیڑ بکری ہوتے، ان کے بچے نہیں ہوتے؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اس برسوں میں ہم نے اپنے جنگی مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی ہے، اور ان میں سے ایک مرکزی مقصد یرغمالیوں کی واپسی ہے۔ اب ہم اپنے اس ہدف کے حصول کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی غیر معمولی مدد پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس نے آج کئی برسوں بعد اسرائیلی میڈیا کو اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں پر امید ہیں اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے چینل 12 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہم امید کرتے رہے ہیں اور اب بھی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پر جاری خون ریزی کو ختم کر سکیں، چاہے وہ غزہ کی پٹی میں ہو، مغربی کنارے میں یا مشرقی یروشلم میں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ آج ہم بہت خوش ہیں کہ خون ریزی رک گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے اور ہمارے اور اسرائیل کے درمیان امن، سلامتی اور استحکام قائم رہے۔ عباس نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کچھ اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اصلاحات مکمل ہو چکی ہیں اور دیگر پر کام جاری ہے، تاکہ فلسطینی اتھارٹی ایک ایسے نمونے کے طور پر ابھرے جو فلسطینی عوام کی قیادت جاری رکھنے کے قابل ہو۔ انڈیا نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دوبارہ اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعہ کو نئی دہلی میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ عامر خان متقی کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کے دوران کیا۔ شنکر نے متقی سے کہا کہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ انڈیا کے کابل میں تکنیکی مشن کو انڈیا کے سفارت خانے کے درجے پر ترقی دی جا رہی ہے۔ I am pleased
to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. याद रहे कि इंडिया ने अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद काबुल में अपना सफारतखाना बंद कर दिया था। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने तालिबान के वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि आपका दौरा इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान के अवाम के खैरख्वाह के तौर पर इंडिया उनकी तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है। हम अपनी तवीलुल मुद्दती शराकत दारी के लिए पुरअज़म है। उनका मज़ीद कहना था कि पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद अफगानिस्तान की हिमायत को हम सराहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। अफगानिस्तान में कानकनी के लिए इंडियन कंपनियों को मदऊ करना भी काबिल तारीफ इकदाम है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर खारिजा मुत्तकी को 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इंडिया के दौरे की इजाज़त दी है। मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से जारी की जाने वाली दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर एक कार्रवाई के दौरान औरकज़ई हमले में मुलव्वस तमाम 30 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 अक्टूबर को ज़िला औरकज़ई में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्वस शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर ज़िला औरकज़ई के इलाके जमाल माया में की जाने वाली कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद इंडिया के स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। 2 रोज कबल शिद्दत पसंदों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी हैं ताकि शिद्दत पसंदों को तलाश करके ख़त्म किया जा सके। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से इंडिया के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म और साबित कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी औरकज़ई में इंडिया के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश की है और उनका अपने बयान में कहना था कि कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और मुल्क दुश्मन अनासर को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के फैज़ आबाद से अमरीकी सफारत खाने तक अक्सा मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली व खारजी रास्ते मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों की हिदायत जारी करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मरी, बाराको और रवात से आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को दीगर शाहराहों की जानिब मोड़ दिया गया है, जबकि फैज़ाबाद के अतराफ मुकम्मल बंदिश बरकरार है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और शहर में सिक्योरिटी इदारों की फजाई निगरानी भी जारी है। दूसरी जानिब लाहौर में भी TLP कारकुनान और पुलिस आमने सामने हैं, जहां मार्च की रोकथाम के लिए मरकजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मजीद तफसील उमर दराज नंगियाना से। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही फासले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो मजहबी जमात है उसका मरकजी दफ्तर मौजूद है और उसके बाहर पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद तैनात है। इस तरफ भी जो आगे सड़क जा रही है वहाँ पर भी मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्ता ब्लॉक किया गया है और वहाँ पर भी पुलिस और रेंजर्स मौजूद है। हमने यहाँ पर वाटर कैनन भी देखी है और रिएट पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वहाँ पर उनके कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनको रोकने के लिए वहाँ पर रेड पुलिस तैनात की गई है। तो पुलिस ने और इंतज़ामिया ने स्ट्रेटजी कुछ इस तरह बना रखी है कि वहाँ से निकलने वाले किसी भी कारकुन को इस तरफ ना आने दिया जाए और इसका मकसद ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर रखा था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और वो फ़लस्तीन से यकजहती के लिए इस मिलियन मार्च को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये दावा भी किया है कि कल रात को पुलिस ने उनके जो मरकज़ी दफ्तर है यहाँ पर उसके ऊपर रेड किया और इस दौरान उन्होंने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं साद रिजवी, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की लेकिन ताहाल वो गिरफ़्तार नहीं हुए। उनका ये भी दावा है कि उनके बहुत से कारकुनान को यहाँ से उनके मरकज़ से, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात से और दीगर शहरों से भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अभी भी उनके कारकुनान को गिरफ़्तार कर रही है। अब देखना यह है कि क्या
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मार्च को इस्लामाबाद लेकर जाने के फैसले पर कायम रहती है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और फिर उसके बाद इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से क्या रद्द अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने 20 माह खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनका दौर इंतजामी मुश्किलात, माली दबाव और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से भरपूर रहा। बतौर वजीर आला अली अमीन ने सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम बहाल किया और सेहत इंसाफ कार्ड प्लस का आगाज किया। जनूबी इजला के लिए मोटरवे और लिफ्ट इरिगेशन कैनाल जैसे मंसूबों की मंजूरी तो दी, मगर अमली पेशरफ्त ना हो सकी। उन पर तनकीद रही कि वो सिक्योरिटी एहलकारों के जनाजों में शरीक ना हुए और अवामी मंसूबों की मुअस्सर तशहीर भी ना कर सके। तज्जियाकारों के मुताबिक PTI कारकुनान की उनसे सबसे बड़ी तवक्को इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर सियासी किरदार अदा करना थी। ताहम मुतअद्दिद कोशिशों और ऐलानात के बावजूद वो इस हदफ में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की वजारत आला का दौर कितना मुतनाज़ा रहा और नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी कौन है, जानिए अजीजुल्लाह खान से। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इमरान खान के इस फैसले के बाद कि अली अमीन को वजारत आला से हटा दिया जाए, अब यहाँ पर एक सियासी कशमकश जारी है। लेकिन हम पहले देखते हैं कि अली अमीन का जो ये 20 महीनों का दौर था, ये कितना मुतनाज़ा रहा या कितना ये स्मूथली चला है। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला का ओहदा संभालने के बाद अली अमीन से ये तवक्कुआत थी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे, और ऐसा देखने में भी आया जब उन्होंने बड़ी रैलियां और बड़े जुलूस इस्लामाबाद की तरफ वो लेकर गए। उस दौरान उन्होंने मुज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ा जब वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई, और उन्होंने जो तहैया किया था कि वो डी चौक पहुँचेंगे, वो डी चौक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर जो मुतनाज़ा बात बनी वो थी कि जब वो वर्कर्स को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। इस बारे में उन पर काफ़ी तनकीद भी हुई कि वो वर्कर्स को अकेला छोड़कर कहाँ गए, तो इस बारे में उनके ऊपर भी बड़ा एक इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। इसके अलावा अली अमीन के ऊपर जो बात की जा रही है कि वो पार्टी के अंदर सब लोगों को, सब कायदीन रहनुमाओं को साथ लेकर नहीं चले, बल्कि उन्होंने सोलो फ्लाइट ली है। इसकी बड़ी वजह ये भी सामने आई कि उनका जो मुखालिफ धड़ा था वो मुसलसल शिकायतें करता रहा, लेकिन सामने कुछ भी नहीं आता रहा। और फिर 27 सितंबर को जो पेशावर में अभी जलसा हुआ था, उसमें जिस तरह कारकुनों ने रद्द-ए-अमल दिया, तो वो सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि कैसे अली अमीन के खिलाफ उनके कारकुन और रहनुमा खड़े हैं। अली अमीन के बारे में जो कहा जा रहा है वो ये है कि उनके ताल्लुकात इमरान खान की बहन अलीमा खान से भी कशीदा रहे हैं। अगरचे उन्होंने कुछ रोज़ पहले अलीमा खान के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये तासुर दिया था कि हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन जब 27 सितंबर का वाक़या पेश आया और उसके बाद उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने अलीमा खान पर सख्त इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद यहाँ पे हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे और पार्टी के अंदर दीगर रहनुमा भी खुलकर अली अमीन के ख़िलाफ़ बातें करने लग गए थे। इसके अलावा अली अमीन के बारे में जो उनके कुछ ऐसे फैसले भी थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहतर रहे हैं। उनमें एक तो ये कहा गया है कि उन्होंने वो जो सेहत इंसाफ कार्ड था जो अबूरी हुकूमत में ख़त्म हो गया था या मुअत्तल रहा, उसको दोबारा जारी किया और उन्होंने उसके लिए भारी फंड्स भी जारी किए। इसके अलावा उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड प्लस भी जारी किया जिसमें जो काफ़ी महंगे ऑपरेशन से उसको भी उन्होंने शामिल किया। वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं दे सके जिसमें कहा जाता हो कि कोई मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए वो पे अमल दरामद उन पे नहीं हो सका। जैसे उन्होंने जनूबी अजला के लिए मोटरवे का कहा, उन्होंने चश्मा लिफ्ट इरिगेशन कैनाल का भी कहा, उन्होंने तालीम के शोबे में भी इम्प्रूवमेंट की बातें की, कोई एजुकेशन कार्ड का भी जिक्र किया और इस तरह की से बातें थीं, लेकिन उस पर कहीं ऐसे ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसा अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। अली अमीन के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी आयद हुआ है कि उनके दौर में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक रही है। और जो कोई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने तहकीक की, उन्होंने कहा है कि जो इन 9 महीनों में तशद्दुद के वाक़यात इतने ज़्यादा हुए हैं जो पिछले पूरे साल में भी नहीं हुए थे, और वो जो वाक़यात हुए हैं वो ज़्यादातर इनके अपने आबाई इलाकों में हुए हैं, जैसे डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, कुलाची हो गया, टांग, बन्नू, लकी मरवत, उन इलाकों में ये तशद्दुद के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और वो इनको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नौजवान रहनुमा सुहेल आफरीदी को इस ओहदे के लिए नामजद किया है। सुहेल आफरीदी की उम्र हार्डली कोई 35 साल है। उन्होंने अपना जो सियासी करियर का आगाज़ था वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से किया, फिर यूथ विंग के सरबराह भी बने और फिर उन्होंने सूबाई असम्बली का इस मरतबा 2024 का इंतखाब में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुए हैं। अगरचे 2019-20 में जो इंतखाबात हुए थे, बलदियाती इंतखाबात, उसमें वो नाकाम रहे थे। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल नातजर्बाकार हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत थी जो कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म कर सके, और हो सकता है कि जो धड़े बंदी है सुहेल से ये तवक्को की जा रही होगी कि एक तो वो धड़े बंदी भी ख़त्म करे और दूसरा ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें भी कर सके। इंडियन एयरफोर्स के 93वें योम तासीस के मौके पर एक तकरीब के मुबैना मेन्यू कार्ड में पाकिस्तानी शहरों के नाम से मंसूब खाने पेश किए गए, जिनमें रावलपिंडी चिकन टिक्का, सरगोदा दाल मखनी और भावलपुरी नान शामिल थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये तकरीब दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस में मुनक्कद हुई, ताहम फ़िज़ाइया या वज़ारत दिफ़ा की जानिब से इस मेन्यू की तस्दीक नहीं की गई। हुकूमती वज़रा और बीजेपी तर्जमानों ने अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहस छिड़ गई। मेन कोर्स में जो डिशेस रखी गई थी उनमें शामिल था रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफ़ीकी रहरा मटन, भुलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नान। मिठाइयों के नाम भी ऐसे ही थे, बालाकोट टिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदा और मुरीद के मीठा पान। पाकिस्तानी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हाथों 6 तैयारे खोने के बाद इंडियन फ़ज़ाइया को बचगाना हरकत की बजाय कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुहक्किक राबिया अख्तर ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि अगर जंगें किचन में जीती जाती तो इंडियन एयरफोर्स नाकाबिल तस्खीर होती। इंडिया में भी कई सार्फिन ने इस इकदाम को गैर संजीदा और गैर पेशा वराना करार दिया, जबकि कुछ ने इसे महज मिज़ाहिया मेन्यू करार देते हुए दिफा किया। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मई में दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई झड़पों और मिसाइल हमलों के दावों के बाद कशीदगी पहले ही उरूज पर है और अब ये तलखी खाने की मेज़ तक जा पहुंची है। सामीन, जब कोई आपकी परवाह करता हो या आपके करीब हो और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो ये आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर सकता है और आपकी ज़हनी सेहत पर भी असर डाल सकता है। आज उमर आफरीदी कुछ फौरी और तवील मुद्दती एहसासात की वजाहत करने में आपकी मदद करेंगे कि आप गम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखें, उन्हें कभी कहीं जाने न दें। लेकिन जब हमारा कोई प्यारा मर जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो गया है। वो यहाँ थे और अब वो नहीं है। और मौत हम सबको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर करती है। आप रोना चाह सकते हैं, चाहे दूसरों के सामने हो या अकेले में। आप बहुत से दूसरे लोगों को भी रोते हुए देख सकते हैं। ये एक जिस्मानी दर्द की तरह तकलीफ दे सकता है। आपके सर या पेट में दर्द हो सकता है। आपका खाने का दिल ना करे। अपने प्यारे के जाने का दर्द ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो आपको अंदर से खुरच रहा हो। आपको महसूस हो सकता है कि आपका गुस्सा शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। उदासी या बदला लेने की ख्वाहिश भी महसूस हो सकती है। आप चीख सकते हैं, ये आपके साथ, आपके ख़ानदान के साथ ही क्यों हुआ? ये इंसाफ नहीं है। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन पर गुस्सा कर सकते हैं या उन्हें खुद से दूर कर सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको महसूस हो सकता है कि ये मौत किसी ऐसी चीज़ की सज़ा है जो आपने की या नहीं की, कि आप इसके मुस्तहिक हैं, लेकिन ये सच नहीं है। खुद को जिम्मेदार ना ठहराएं। हो सकता है कि मौत के ख्यालात आपको सोने न दें और जब आप सोएं तो आपको डरावने ख्वाब आएं, या आपको महसूस हो सकता है कि सब कुछ खामोश हो गया है। हो सकता है आप किसी से बोलना या मिलना ना चाहें। आप बस अपने आप को कर्ल करना चाहते हैं और कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप उस शख्स को याद करना चाहते हैं, लेकिन
ان کی موت کو یاد کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ اس درد سے نمٹنے کو آسان بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگرچہ موت کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو، لوگوں کا آپ کو اداس دیکھنا ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ غم کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ ایسا محسوس نہیں کریں گے جیسا کہ آپ ابھی کرتے ہیں۔ کیا آپ کے کوئی سوالات ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو تمام جواب نہ ملیں، لیکن بات کرنا مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔ آپ اس شخص کے بارے میں بات کرنا چاہ سکتے ہیں جو مر گئے، یا اس بارے میں کہ کیا ہوا، یا کوئی بالکل ہی مختلف چیز۔ اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ تصاویر دیکھیں اور خوشگوار لمحات کے بارے میں باتیں کریں۔ کسی کے مرنے کے بعد ان کاموں کو کرنے کا دل نہ کرنا ٹھیک ہے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے، لیکن جو کام ضروری کرنے ہیں انہیں کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طرح زندہ رہتے ہیں۔ یہ کسی یاد میں ہو سکتا ہے یا کسی ایسے شخص میں جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ سامعین، اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے بھی حالات بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہوں۔ BBC ورلڈ سروس کے تعلیمی پروگرام درس کی ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں ماہرین سے بات کر کے بعض ایسے مشورے دیے گئے ہیں جن سے آپ کو امید تلاش کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ یہ کہانی امید کے بارے میں ہے۔ پہلے آپ کو اس کہانی کے اختتام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی کی کہانی بہت تاریک ہے، بہت ڈراونی ہے اور اس کا ہر باب تنازعات سے بھرا ہے، اس میں پانے سے زیادہ کھونے کا ذکر ہے اور غیر استحکام ہے، اس سب کے باوجود بھی آپ امید کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اسے ڈھونڈنا ہے اور اس کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی یہ کہیں بہت گہری دبی ہو سکتی ہے، بالکل زمین کے اندر جواہرات کی طرح، لیکن یہ یقین رکھیے کہ یہ ہے۔ امید ایک طاقت ہے، یہ خود پر وہ اعتماد ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ مستقبل میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور اسی سے ہمیں آج درپیش مشکلات سے لڑنے کی ہمت ملتی ہے۔ جب مشکلات زیادہ بڑھ جائیں تو یہ سوچنا مشکل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں کچھ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور تب آپ امید کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور کتاب کو بند کر رکھ سکتے ہیں کہ چلو کہانی اب ختم ہو گئی، لیکن صبر رکھیے، آگے آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اچھی چیزیں ہوں گی اور اچھا وقت آئے گا۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، خوف محسوس کرنا اور بے یقینی کا شکار ہونا عام بات ہے۔ اس موقع پر یہ سوچیے کہ ماضی میں آپ نے پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا تھا۔ اگر تب آپ مضبوط تھے اور ان پریشانیوں کا سامنا کر لیا تھا تو دوبارہ پھر کر لیں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں اور چیزوں میں اچھائی کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو جیسے پھولوں کو یا آسمان کو۔ مشکل وقت میں آپ کو کوئی ایسی خوبصورت چیز اچھی لگ سکتی ہے جسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ ایسے کاموں کو کرنے میں اپنا وقت گزارو جسے کر کے آپ توانا محسوس کریں۔ اس میں اپنے پیاروں سے ملنا، کتاب پڑھنا، ڈرائنگ بنانا اور عبادت کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ سے کہو کہ آپ کو بھی خوش رہنے کی اجازت ہے، آپ کا اپنا وجود ہے، اس کی اہمیت ہے، اور مستقبل کے بارے میں پر امید ہونا آپ کا حق ہے۔ برا وقت تب تک ہی ہے جب تک اچھے دن واپس نہیں آ جاتے، اور جب آپ کو امید کے چمکتے ہوئے جواہرات مل جائیں جو کبھی کبھی گہرائیوں میں دبے ہوتے ہیں تو ان کو مضبوطی سے پکڑیں اور سنبھال کر رکھیں۔ آپ امید کو بانٹ بھی سکتے ہیں۔ دوسروں کو امید دینا ہمدردی اور شفقت کا جذبہ ہے۔ خوشیاں جتنی بانٹو بڑھتی ہیں۔
اپنے خوابوں اور امیدوں کے بارے میں لوگوں سے بات کرو، ان سے پوچھو کہ انہیں یہ جواہرات کہاں سے ملے۔ دیکھیے، آپ کے موجودہ احساسات آپ کی شخصیت کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا جب آپ کے ارد گرد کے حالات نارمل اور پرسکون ہو جائیں، تب آپ اپنی زندگی کی کہانی دوبارہ کیسے لکھو گے؟ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ڈمپر ٹرک خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ ہر ماہ ان سے ہونے والے حادثات میں 90 سے زائد افراد جان کی بازی ہار رہے ہیں، جن میں زیادہ تر موٹر سائیکل سوار شامل ہیں۔ شہری حلقوں کے مطابق ان حادثات کی بڑی وجوہات میں غیر تربیت یافتہ ڈرائیور، رات کے اوقات میں تیز رفتاری اور سڑکوں کی خستہ حالی شامل ہیں۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناقص ٹریفک مینجمنٹ، کمزور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور شہری منصوبہ بندی کی کمی بھی ان سانحات کا سبب بنتے ہیں۔ مزید تفصیل ریاض سہیل اور محمد نبیل کی اس رپورٹ میں۔ کیا روڈ پہ چلنے والے جو بائکوں پہ جو سوار ہوتے کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا بھیڑ بکری ہوتے؟ ان کے بچے نہیں ہوتے؟ آپ 2 مالا کی اونچی گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہو، کیا آپ لوگوں کو ہم لوگ دکھائی نہیں دیتے؟ آخر اس کی کیا بات تھی کہ میری تو دنیا اجڑ گئی نا۔ محمد شاہ کے 10 اگست کی ایک شب اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گھر جا رہے تھے کہ پل جھپک میں ان کی زندگی غمگین راتوں میں بدل گئی۔ راشد بناز روڈ پر ایک ڈمپر بے قابو ہو کر دوڑا اور ان کے بچوں کو روند گیا۔ پیچھے سے 3-4 ڈمپر آ رہے تھے جو گزر بھی چکے تھے کچھ، اور کچھ گزر رہے تھے۔ اسی درمیان جو ہے میری بائک جو ہے نا ہٹ ہوئی۔ جب بائک ہٹ ہوئی تو میری بیٹی کے وہ جا کے لگی۔ میرے بیٹا بیچ میں بیٹھا تھا، احمد رضا۔ بیٹی کے میرے جب ڈمپر لگا تو اس نے جیسے مجھے پکارا، میں نے پیچھے پلٹ کے جب دیکھا تو میرے بائک کے اوپر میرے بیٹے اور بیٹی نہیں تھے۔ اسی درمیان ایک ہائی روف آگے جا رہی تھی جس سے میں ہٹ ہو کے آگے بڑھا اور اس سے میں ٹچ ہو کے جو وہ آگے بڑھ گئی۔ میں کہاں جا کے گرا مجھے ہوش نہیں تھا، بس اس درمیان میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اور جب میں اٹھا، میں نے جب سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اور بیٹی جو ہے اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ محمد شاکر کی کہانی سینکڑوں جانوں کی نمائندگی کرتی ہے جو ہر سال ضائع ہوتی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں ہر ماہ 90 افراد سڑک کے حادثوں میں ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ محققین کے مطابق یہ تعداد 100 سے زائد ہے۔ ہلاک و زخمی ہونے والے زیادہ تر موٹر سائیکل سوار ہیں جو شہر کی بھاری ٹریفک یعنی ڈمپروں، ٹینکروں اور ٹرالروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہیوی ٹریفک اس وقت شہر پر موت کے سائے کی طرح منڈلاتی رہتی ہے، جس سے ہر بائک سوار خوفزدہ ہے۔ ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے جس سے میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ ریسنٹلی کل ہی یہ واقعہ ہوا کہ میں جا رہی ہوں سیدھی سیدھی اور وداؤٹ اینی انڈیکیٹرز انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے برابر سے گزرنے کے لیے نکلی ہوں اور انہوں نے جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ ٹرالر گھما دیا اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں، مجھے نکلنا پڑا۔ ہیوی ٹریفک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں اور اتنی سپیڈ میں ان کو بس خالی روڈ نظر آ جائے، وہ پھر آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ بائک ہے یا رکشا ہے، کچھ بھی ہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم ٹرن کیسے لے رہے ہیں، ان کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم لوگ چوراہے گھوم رہے ہیں، کس اسپیڈ سے لے رہے ہیں۔ ایک بائک کی طرح ڈمپر، ٹینکر اور یہ ٹرالر گھما دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی حکومت کو چاہیے کہ یہ ٹرالے بند کر دیں، نہیں تو انہوں کے لیے کوئی الگ روڈ بنا دیں۔ تو اس کی وجہ تو یہ جو سندھ گورنمنٹ نے صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 10 بجے تک پابندی لگایا، شام کو 10 بجے یہ گاڑی سب اکٹھا بھی ہوگا، تو اس وجہ سے تو ایکسیڈنٹ کا تعداد اور بھی زیادہ ہوئی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والوں کی اکثریت 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے، جو اپنے خاندانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو روڈ حادثات کے جو وکٹم ہیں وہ زیادہ تر جو ورکنگ طبقہ ہے، جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں کام اپنے روزی کے لیے۔ جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ورک فورس سے نکلنے کی کاسٹ پلس اس کے کیئر کی اور اس کی فیملی کے کیئر میں انوالومنٹ کی کاسٹ، تو یہ ساری چیزیں ملا کے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کاسٹ وہ شیئرڈ ہے، مطلب یعنی کہ
वो सरकार पे भी पड़ती है और वो प्राइवेट में भी पड़ती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में पड़ती है। उनके पास प्राइवेट केयर की इतनी फैसिलिटी नहीं होती और वैसे भी एम्बुलेंसेस पहले हमेशा किसी पब्लिक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे सरकार का कॉस्ट है। सरकार के अस्पतालों में ट्रॉमा पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो दूसरी बीमारियों पे, बच्चों पे, माँओं पे वो इतना खर्च नहीं कर सकते। मुल्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर को इस पैमाने के बहरान का सामना क्यों है, आइए इसका जायजा लेते हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 24,000 से ज्यादा डंपर्स, टैंकर्स और ट्रक्स मौजूद हैं। माहिरीन हादसात की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तारी को भी समझते हैं। फुली लोडेड गाड़ी आपके पास चल रही होती, चाहे वो पानी का लोड लेकर जाए, चाहे वो मिट्टी का लेकर जाए, किसी भी चीज़ का लोड लेकर जा रही होगी, तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि गाड़ी की रफ्तार में जितना वज़न होगा उसमें उतनी ज़्यादा कुव्वत होगी। एक तो ये ओवरलोडेड चल रहे होते हैं और दूसरा स्पीड में ज़्यादा चल रहे होते हैं। जो राइडर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी बेहतियाती है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं उनको कसूरवार बोलूँ, कि वो अपनी लाइन में नहीं चलते हैं और किसी भी सिम से वो दाखिल हो जाते हैं। अब अगर तो जब ये दोनों मिक्स चलेंगी तो इसमें कुछ भी कर लें हम लोग, इनका हादसे का कोई ना कोई वजह बन जानी और हादसा इनका हो जाना है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर में सड़कों का जाल बिछा है और बारिशों और वक्त पर देखभाल ना होने की वजह से कई मकामात पर गड्ढे पड़ जाते हैं। हादसात की एक वजह टूटी हुई सड़कों को भी करार दिया जाता है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट हमने खुद देखे कि जिसमें मोटर बाइकर की भी गलती नहीं थी, रोड के ख़राब होने की वजह से उसकी मोटर बाइक का कंट्रोल ख़त्म हुआ और वो लुकमाए अजल बन गया। लोग मोटरसाइकिल पे समझते हैं कि शायद बैक ग्लासेस या साइड ग्लासेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जब हमारा राइडर ऐसे करके निकल जाता है उससे बचने के लिए गड्ढे से या किसी भी टूटे हुए रोड से, तो उसको नहीं मालूम पीछे से क्या चीज़ आ रही है। कराची में पीने के पानी का बहरान है। डिफेंस हो या औरंगी, कई इलाकों में पानी की लाइन के जरिए फराहमी नहीं होती। इन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी मुहैया किया जाता है। दीगर गाड़ियों की शहर में आमदोरफ्त का वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये टैंकर बगैर वक्फे चलते रहते हैं। अगर हम लोग कुछ दिहाइयों पीछे चले जाएं तो ये जो आजकल हादसा टैंकर, वाटर टैंकर से या डंपर से हो रहे हैं, ये मज़दा से हो रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त मज़दा एक दूसरे से रेस लगा के चल रहे होते थे। अब हर घर में पानी नहीं आ रहा, तो हर टैंकर को पहुंचना होता है मैं जल्दी से इस घर में पानी डाल दूं फिर दूसरे में डाल दूं, तो वो अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रखते। कराची में शहरियों की आमदोरफ्त के लिए ग्रीन लाइन और रेड लाइन बसों का आगाज किया गया, लेकिन ये महदूद पैमाने पर है। लोगों की अक्सरियत अपनी गाड़ियों, बिलखुसूस मोटरसाइकिलों पर सवारी करती है, जिनकी तादाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 50 लाख से जायद है। हादसात की एक वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी को भी समझा जाता है। जो पहले ट्रैफिक थी मगर वो चल रही थी, मगर मोटरसाइकिल्स की बहुत ज़्यादा आम वो फ़रोख्त होने की वजह से इनके मोटरसाइकिल के राइडर्स जो हैं वो फिर वो उसके शिकार होने लगे, हेड इंजरी के, एक्सीडेंट्स के। मगर एक बहुत ही अहम वजह ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होने की, कि जो रिस्क लोग ले रहे हैं कम्यूटिंग में, रोड यूज़ में, वो कदरे कम हो जाता है। ये कि जितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स आएंगी उतना ज़्यादा लोड तो हमारे पास ऑफ कोर्स आएगा, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल जितने पहलवान आपके रास्ते में मुकाबले में आएंगे उतने ज़ख्मी तो उसमें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की मनमस्तियां भी देखी जा सकती हैं। अक्सर के पास साइड मिरर भी दस्तयाब नहीं होते। माहिरीन कहते हैं कि डंपर्स और टैंकर्स जैसी बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग सीटें ऊंची हैं। दूसरा, कई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, यानी वो जगहें जहां से ड्राइवर को नजर नहीं आता। हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा 30 साल से कम उम्र अफराद की बड़ी गाड़ियां चलाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। बड़ी गाड़ियों पर
कैमरे लगाने की भी हिदायत की गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स इससे खुश नहीं। कैमरे जो मेरा अपना ज़ाती खुद गाड़ी है, उसके साथ मैंने वादा किया, कैमरे मैंने लगाया, एक कैमरे का खर्च है 25,000 30,000 खर्च है, मैंने खुद भी लगाया। तो हमारा गाड़ी तो पक्के रोड में नहीं चलेगा, ये कच्चा रोड जिस तरीके से माई गाड़ी आमदर यूनिवर्सिटी है, सारा कच्चा रास्ता है, कैमरे का सिस्टम नहीं चलेगा। उसके बाद आईजी ट्रैफिक के साथ मेरा मायदा होगा ट्रैगर का। ट्रैगर तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब गाड़ी को मैंने लगाया। बहरहाल दुनिया ने कुछ कैमरे वगैरह भी लगाए हैं कि कैमरों से कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन इस ट्रैफिक के अंदर जब ड्राइवर आपका बैठा हुआ है और उसके हर तरफ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे स्पॉट ज़रूर बनेंगे जिसमें मैं नहीं समझ सकता कि 100% वो ड्राइवर उसे देख सकेगा कि कहाँ से गाड़ी आ रही है। एक तो उनके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उनको वो नज़र नहीं आती मोटर बाइक। सेकेंडली फिर जब बड़ी गाड़ी जब चल रही होती है तो लर्जिश होती है, और उस लर्जिश की वजह से चीज़ों को वो सक करती है अपनी तरफ, और इनको पता ही नहीं चलता, चलते चलते वो टायरों के नीचे चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने उनको गाइड किया कि अगर कोई भी बड़ी गाड़ी उनके करीब है तो उनके आगे ना आएँ, क्योंकि जब वो बिल्कुल उनके आगे आ जाते हैं तो वो भी उनके ब्लैक स्पॉट में आ जाते हैं। तो ये हमने मेनली यानी कि एक तो आगाही की तरफ, फिर सेकंड जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें डंपर्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, उनके अंदर हमने ट्रैकर्स लगवाए। यह ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम है जहां हेवी गाड़ियों का जायजा लिया जाता है। जैसे ही रफ्तार 30 किलोमीटर से ज़ायद होती है, यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद इस गाड़ी के मालिक को चालान भेजा जाता है। इस वक्त तक यहाँ 10,000 से ज़ायद टैंकर्स, डंपर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ट्रैकर लगाए गए हैं। तेज़ रफ्तार रोकने के लिए हुकूमत ने यह रास्ता अख्तियार किया है। पहले हमने एक सजेशन दी मसले को हल करने के लिए, फिर हमने उसका कानून पास कराया कि अगर कोई बड़ी गाड़ी HTV वो या बसेस जो कि छोटी बसेस जो LTV में आती हैं, अगर ये पब्लिक सर्विस वाली ट्रैकर नहीं लगाएंगी तो उनका जुर्माना होगा उनको, और वो हमने 1 लाख रुपया जुर्माना तजवीज़ किया और उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और असेंबली ने पास किया। तो अब चूँकि इतना बड़ा जुर्माना है तो ये बड़ी गाड़ियों वाले ट्रैकर्स लगा रहे हैं और उनका कंट्रोल हमें दे रहे हैं। रीज़न इसकी ये है कि हमने इसकी अपर लिमिट जो रखी है गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की, वो 30 किलोमीटर्स पर आवर रखी है पूरे कराची के अंदर। तो अगर कोई भी शूट करता है या ओवर स्पीड करता है तो अब हमें ग्राउंड पर रडार्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका जो ट्रैकर है इट सर्व्स एज जो है ना सिग्नल टू अस, रेड फ्लैग होता है। शहर में पीने के पानी से लेकर तामीराती मटीरियल और खाने पीने की अशिया की मुंतकिली के लिए हेवी गाड़ियों की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान की दोनों फाल बंदरगाहें भी इसी शहर में वाक़े हैं, जहां से सामान अंदरूनी मुल्क मुंतकिल होता है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों और ड्राइवरों की फिटनेस का कोई मौसर निज़ाम नहीं। नतीजे में गाड़ियों की खराबी हो या ड्राइवरों की गफलत एक बड़े हादसे को जन्म देती हैं, और ये रोज़ का मामूल बन चुका है। नतीजे में आवाम का सब्र कभी कभार लबरेज हो जाता है और ये इंतज़ामी और तकनीकी मसले के बजाय सियासी शक्ल अख्तियार कर लेता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।